Hello students, myself Professor S. K. Singla. Continuing with our previous lecture on Newton's laws of motion. Today's topic is impulse. What is impulse? Impulse is when a large force acts on a body for a small time only. When a large force acts on a body for a small time only, then a quantity called impulse is measurable. A quantity होती है impulse, so that is measurable. So what is impulse? Impulse is equal to force multiplied by time. That is F. Here we say average force multiplied by small time interval, that is delta t. This is called impulse. So the product of average force acting during this time interval and the small time interval for which this force acts is called, that is called impulse. According to Newton's second law of motion, Newton's second law of motion के मुताबिक क्या है? What is the average force? This is rate of change of linear momentum, that is dp dt. Okay. What is impulse? This means impulse is equal to f average की वैल्यू पुट कर दो, dp dt into delta degree का we can write dt also or delta into dt. dp dt cancels, that is dp. What is meant by dp? dp dt is rate of change of momentum. पहला dp क्या होगा? dp is change in momentum. Impulse is also equal to change in momentum. Now what is the SI unit of impulse? SI unit क्या होगा? This is force into time. That is Newton. Force is in Newton, time is in seconds. That is Newton seconds. Or this is also equal to change in momentum. But change in momentum के यूनिट क्या होते हैं? इसके होते हैं मास के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So this is the SI unit of impulse. That is Newton second or kilogram meter per second. What is the dimensional formula of impulse? impulse का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? न्यूटन. फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ml. डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इज ml t minus 2 एंड टाइम का t, दैट इज ml t minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर impulse. Now how can we measure the force of impulse graphically? impulse of a force को graphically किसका measure कर सकते हैं? Suppose this is a graph between F and T. A force starts acting at time t1 and then acts up to time t2. So graphically what is फोर्स ड्यूरिंग इम्पैक्ट इज वेरिएबल. जैसे आपने किसी चीज में इम्पल्स होता है, जैसे दीवार में नेल लगाते हैं तो भी हिट द नेल विद द हैमर. जैसे ही हैमर आके क्या करते हैं, ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए वेरी स्मॉल थिंग. अब जो हैमर जो है जस्ट टचेस, जब हैमर जस्ट टच करेगा फोर्स जीरो होगी, जब पूरा टच करेगा तो फोर्स मैक्सिमम, उसके बाद फिर द्वारा फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो. दैट इज बाय ये स्टार्टिंग है, फोर्स बढ़ेगी फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी? जीरो. एवरेज फोर्स लेती है. तो ग्राफिकली व्हाट इज इंपल्स? ग्राफिकली इंपल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू एफ dt from T1 to T2. That is area under the FT graph. Impulse is equal to
ग्राफिकली इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एफ टी ग्राफ के नीचे एरिया है, दैट इज नोन एज इम्पल्स। किसी बॉडी के इम्पल्स जो है, द इम्पल्स ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इट may remain constant because impulse is equal to change in momentum. Change in momentum can be positive, it can be negative, or there can be no change in momentum of the body. The impulse can be positive, negative or constant. There are a large number of examples of impulse or applications of impulse. Now, what is impulse? Impulse is force into time. Now from here if force is kept constant, then impulse is directly proportional to time. फोर्स इज कांस्टेंट, दोबारा देखते हैं। पहले एक इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। एक क्रिकेट प्लेयर लॉस हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर लॉस हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। क्रिकेट प्लेयर जो है अपने हाथ को नीचे करता है व्हाइल कैचिंग ए बॉल, व्हाई डज सो? A cricket player lowers his hand while catching a ball because by lowering his hands he increases the time or interval in which the catch is completed. ठीक है, वो कैच पकड़ता है तो यहाँ पे उसने बॉल आई, he lowers his hands to complete the catch. ऐसा करने से क्या करेगा, वो टाइम ऑफ कैच इंक्रीज कर देगा। टाइम ऑफ कैच इंक्रीज करने से क्या होता है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज इम्पल्स upon time. Impulse is force into time. And what is impulse? Impulse is change in momentum. Upon time. That is, force is inversely proportional to time. If you increase the time, the force on your hands will be lesser. Force of the ball on your hands will be lesser. This decreases the, इससे क्या होगा, by increasing the time of catch, the rate of change of momentum decreases. ठीक है, the rate of change of momentum decreases and hence reduces force which the ball hits the hands, and thus the hands are not injured. ऐसे ही है, we are less hurted when we jump on muddy floor in comparison to hard floor. जब मडी फ्लोर हो, मडी इन पंजाबी को क्या कहते हैं, गारा और मिट्टी, ठीक है, सॉफ्ट मड और सैंड कह लो। अगर कोई मान लो छत से गिरता है, अगर वो मिट्टी में गिरेगा, सॉफ्ट या सैंड में गिरेगा, क्या होगा, वन फॉल्स, ही इज एम्बेडेड इनटू द मड के बीच चला जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है, जब जितनी देर में नीचे जाएगा मड के बीच में धस जाएगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज होगा तो फोर्स उसके ऊपर कम लगेगी। अगर वहीं से बादल जो छत से गिरता है ऑन द हार्ड सीमेंटेड फ्लोर पे गिरेगा, तो गिरेगा यहाँ पे आके गिरेगा, तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज वेरी स्मॉल। अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट स्मॉल होगा, फोर्स इज वेरी लार्ज, तो जिसके कारण उसकी उसी पस्सी की हड्डी क्या होती है, टूट जाती है। जब कोई छत से नीचे गिरता है, ऊंचाई से नीचे गिरता है, अगर वो मड में गिरेगा या सैंड में गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगती, उसकी हड्डी नहीं टूटती, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज लार्ज, फोर्स जो है बहुत थोड़ी होगी, छोटी होगी। और अगर वो कंक्रीट फ्लोर पे गिरेगा, टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगा, वेरी स्मॉल, तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगी, दैट इज वाई उसको फ्रैक्चर हो जाएगा।
ऐसे ही है, वाई आर बोगीज ऑफ ट्रेन प्रोवाइडेड विद बफर्स। ट्रेन की बोगीज जो होती है उनके पीछे बफर लगे होते हैं। ऐसा क्या होता है बफर्स? बफर्स में बेसिकली क्या होता है? बफर्स कंटेन स्प्रिंग्स। जब ये दो जंक्शन होती है आपस में ट्रेन जुड़ेगी तो दे आर प्रेस्ड। प्रेस होने से क्या होता है? टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस। टाइम ऑफ इंपैक्ट अगर इंक्रीज होगा फोर्स क्या होगी? कम लगेगी। तो जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं उनको झटका क्या लगेगा? कम लगेगा। ऐसे ही चाइना वेयर्स आर रैप्ड इन स्ट्रॉ पेपर, स्ट्रॉ और पेपर बिफोर पैकिंग। जितने भी चाइना वेयर्स आते हैं, ठीक है, ग्लास है चाइना क्ले के, ठीक है, ग्लासेस है या कांच के ग्लास हैं, ये सब इनको पैकिंग करने से पहले या तो पेपर में या स्ट्रॉ में पैक करके फिर पैकिंग करते हैं उनकी। स्ट्रॉ में लपेट कर या पेपर में लपेट कर फिर पैकिंग करते हैं। ऐसा क्यों है? बाय डूइंग सो द कट, जब वो ट्रांसपोर्ट होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो उसमें टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीजेस, फोर्स कम लगेगी, वो टूटेगी नहीं। ऐसे ही हम व्हीकल्स पे चढ़ते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसमें क्या शॉकर्स होते हैं। शॉकर्स किसके लिए होते हैं? ठीक है, शॉकर्स क्या करते हैं? टाइम ऑफ इंपैक्ट, हम बैठे हैं ऊपर तो हमारी सीधा स्पाइन पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगता है। तो टाइम ऑफ इंपैक्ट इंक्रीज होगा, फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप। नेक्स्ट है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion as already defined. According to third law of motion, action and reaction are equal and opposite. तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक क्या है? फोर्स exerted by body A on B is equal to force exerted by body B on A. So this is equal in magnitude but opposite in direction. That is, if we take this FAB is equal to minus FAB is equal to minus FBA. Suppose you push a ball, आप किसी बॉल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज A and this ball is B. फोर्स एक्सर्टेड बाय A and B इज इक्वल एंड अपोजिट टू, तो ये बॉल भी क्या करेगी? फोर्स लगाएगी उस पर, दैट इज FBA. तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। और भी एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल स्विमिंग ए पर्सन पुशेस द वाटर बैकवर्ड, पानी को पीछे धकेलता है, एंड इन रिएक्शन द वाटर पुशेस हिम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट आर सम इंप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इंप्लीकेशंस क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल आउट ईच अदर। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, या आपस में कभी इक्वल है तो कैंसिल नहीं होगी कभी भी, बिकॉज द एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन इसके ऊपर है, बॉडी के ऊपर, जैसे वॉल है, ये एक्शन इज ऑन द वॉल एंड रिएक्शन इज ऑन द मैन पुशिंग। तो दो फोर्सेस तभी कैंसिल होती है, दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। तो एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल आउट ईच अदर, ऑफ कोर्स दे आर इक्वल, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन द बॉडीज आर रेस्ट और इन मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो दोनों में लगता है। बॉडी रेस्ट पे तब भी अप्लाई होगा, अगर बॉडी मोशन पे है तब भी अप्लाई होगा। द लॉ अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ये लॉ हर टाइप ऑफ फोर्सेस में लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में, मैग्नेटिक फोर्सेस में, न्यूक्लियर फोर्सेस में। ये हम पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स, तो उसमें देखेंगे हम एक्शन एंड रिएक्शन का जो है हर एक टाइप की फोर्स में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। This was our third law. One important question, that is,
Newton's second law of motion is the real law of motion. It is said that Newton's second law of motion is real law of motion. क्योंकि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको हम सेकेंड लॉ से रिड्यूस कर सकते हैं. पहले हम यही लेते हैं, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. Second law is the real law of motion. सेकेंड लॉ जो है रियल लॉ ऑफ मोशन है. क्यों? नंबर 1, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ जो है कंटेन्ड इन द सेकेंड लॉ. अब देखो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, what is the force acting on a body? Force acting on a body is F is equal to ma. In the absence of external force, in the absence of external force, F is equal to 0. No external force is active, F is equal to 0. That is ma is equal to 0. No, m is not equal to 0. मास कभी 0 नहीं होता. एक इसके बराबर आ गया, 0 आ गया. दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0. बॉडी की एक्सेलरेशन 0 होगी. इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन इज 0. दैट इज देयर इज नो एक्सेलरेशन. There is no acceleration when no force is applied. That is, in the absence of force, in the F0 means in the absence of force, in the absence of force, a body moving in a straight line continues to move along the same straight line or same straight path. दोबारा बोल रहा हूं, there is no acceleration when force is 0. There is no acceleration. ठीक है? That is, in the absence of any force, a body continues to move uniformly along the same straight path. What is this? This is the first law of motion. That is a body continues in a state of rest or of uniform motion, unless it is compelled by some external force to change that state. If F is 0, A is 0. If acceleration is 0, if the body is at rest, it will remain at rest. And if it is moving along a straight path uniformly, it will continue moving with the same speed. So this is first law of motion. उसके बाद थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन द third law is contained in the second law. What is third law? How do we prove it? Let us consider an isolated system of two bodies A and B. एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे जिसमें दो बॉडीज हैं A and B. Isolated means no other force is acting in the system. These are two bodies. These are two bodies A and B. Now suppose the two bodies interact mutually. एक दूसरे को पुश करेंगे ऐसे, इंटरेक्ट म्यूचुअली ईच अदर. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बराबर क्या हुआ? बॉडी ए है, ए बी है, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगी. बड़ी दिस फोर्स एफ लेगी. दैट इज फोर्स ऑन ए, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. बड़ी द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी. ए द्वारा बी के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी? फोर्स बी के ऊपर एक्सर्ट हो रही है तो होगा डी पी बी डी पी. दैट इज rate of change of momentum of B with respect to time, change in momentum of B. This is the force exerted by A on B. And in reaction, B exerts a force on A. This is FTA. Force exerted on B by A. What is this? Force exerted by
D on A is D PA dt. This is dPA dt. If I take it vector, I will put vectors on these also. So what is the net force on the system? SAB plus FPA. So no external force is acting on the system. System में कोई external force नहीं है, isolated system है. These bodies are interacting with each other. No external force is acting on the system. This is equal to D PB dt plus dPA dt is equal to derivative with respect to T of PA plus PB. So this is an isolating system. ये आइसोलेटेड सिस्टम है. इसका मतलब क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा? FAB प्लस FPA इज इक्वल टू 0. FAB प्लस FPA किसके बराबर होगा? देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ? Rate of change of momentum is called. There is no change in momentum. dP dt और PA plus PB दोनों की change in momentum क्या होगा? टोटल 0. अगर ये 0 है तो FAB plus FPA is also equal to 0. That is FAB is equal to minus FPA. मैंने प्रूव करके वैसे आपको बता दिया था. आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0 है. That is FAB is equal to F minus FBA. What is FAB? This is action. FAB क्या है? Action. And what is minus FBA? This is reaction. That is action is equal to reaction. This is nothing but Newton's third law of motion. यहाँ से प्रूव हो गया. फिर सेकंड लॉ, हमने सेकंड लॉ लगाया है. सेकंड लॉ से हमने कौन सा ड्राइव कर दिया? थर्ड लॉ ड्राइव कर दिया. फिर बता रहा हूँ आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. बड़ी फोर्स रिलेटेड बाय A on B dPB dt, बड़ी फोर्स रिलेटेड बाय B on A dPA dt. ठीक है. बड़ी द टोटल फोर्स ऑन द सिस्टम. दोनों को ऐड कर लो. नाउ दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. तो व्हाट इज dP dt? टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा? 0. इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगी, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. तो dPA प्लस PB dt 0. अगर ये साइड 0 है तो ये भी 0. FAB इज इक्वल टू माइनस FBA. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन. दैट इज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. Thus we say that Newton's second law of motion is the real law of motion because first law and third law are contained in the second law of motion. That is why it is said. So it is an important question of theory for final exams. So then some examples from daily life which illustrates the law of third law. First है, suppose a book is lying on a table. ऐसे किताब पड़ी है टेबल में. ठीक है. तो weight of the book acts downward. इस बुक का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है. ठीक है. वेट W is resting on the top of table. The book exerts a downward force equal to the weight of the book. According to Newton's third law of motion, the table also exerts an equal and opposite force, that is reaction R, which in magnitude is equal to W. ठीक है. एक्सर्शन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स R. R किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू माइनस W. ऐसे व्हाइल वॉकिंग, जब हम वॉक करते हैं तो while walking we press the ground with our feet slightly slanted in the backward direction. तो हमारा फीट जो है स्लांट होता है थोड़ा सा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन.
ऐसे क्या करते हैं हम, जब हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे ग्राउंड को इन द, वी विल पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम ग्राउंड को एक फोर्स के साथ पुश करेंगे ऐसे, पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, ठीक है। एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्शन ऑन फुट आर, जितनी फोर्स से हम प्रेस करेंगे उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर एक्ट करेगा। इस रिएक्शन आर के दो कंपोनेंट होंगे ऐसे, if you push the ground, this angle is theta, if this angle is theta, then there are two components of R, R के दो कंपोनेंट बन गए, R cos theta and R sin theta. This vertical component of force balances your weight and R cos theta pushes you in the forward direction. This component of force which pushes you in the forward direction. So this is the components of reaction which balances your weight and pushes you in the forward direction.